Anak ito, lumapit sa akin si Bella. Hindi ko naman alam na magkakabunga ang relasyon noon. Tapos sa lintik na kamalasan ng pamilya natin. Unang kuya kaloy ninyo. Ngayon naman ang mamo nyo. Wala akong nagawa para protektahan sila. Hindi dapat nangyari to eh. Hindi dapat kayong pamilya ko ang nagbabayad sa mga panggagansong ginawa ko. Apo. Kung meron dapat mamatahin, ako yun. Apo, huwag mo na sisihin sarili mo. Wala kang kasalanan. Kung meron may kasalanan ito, si Miguelito yun. Hayop siya. Magbabayad siya sa ginawa nila kay Mamu. Kay Mamu, kay Lola, Lolo, di si Tito. Anong gagawin mo, Fatima? Lalabanan natin sila. Dapat lang. Kailangan natin mahanapan hustisya sila, Mamu. Fatima! Maki, gustuin ba natin na bigyan ng hustisya sila nanay at sila ate? Ano naman laban natin sa mga Guerrero? Kailangan pa rin natin ipaglaban si Mamu. Bigyan natin sila ng katarungan. Kung meron man dapat humanti sa pamilyang to, ako yun. Hindi ko na kayo ipapahamak. Wala ni isa sa inyo ang dapat mawala pa. Bilisan nyo! Santino. Santino, magkirami kami Santino, ano na ba plano ng tatay mo? Ililibing na namin yung araw si Kuya David. Ano? Bakit agad-agad? Tara, mabihis kayo. Sasama tayo. Tara. Gusto kami, Santino. Uy, ililibing na daw si David. Tara, sama tayo. Tara, makipara. Iwan nyo na yan. Tara na. Tara na, uy. Sumama tayo. Poong Nazareno, ipinananalangin ko ang kaluluwa ng apo kong si David at ang kasagutan sa kanyang pagkamatay. Patawarin niyo po siya sa lahat ng kanyang naging kasalanan. Patawarin niyo rin ako dahil hindi ko natulungang ituwid ang kanyang landas. Panginoon,
Yakapin niyo po si Marites na nawala ng anak. At higit sa lahat, kung hindi ko mailalayo si Tanggol sa mundo ng mga girero, protektahan niyo po siya sa kasamaan ng pamilyang iyon. Huwag niyong ipahintulot na may iba pang mapapahamak. Lalo-lalo na si Tanggol. Amen. Angge, anong oras ang libing? Eh, basta ngayong umaga daw eh. Asan yung karo? Oo nga. Asan yung karo? Eh, basta maganda na lang tayo. O basta mamaya, pag dumating yung kabaong, tumulong kayo magbuhat, ah. Tulong kami. Mga lalaki, tumulong kayo, ah. Oo, tulong na kayo. Tulong kami. Nakikirami kami sa Tino. Uy, Hala! Ano ba ng kabaong mo yun? Sisara na yata ng ulo si Mama. ano ba? Santino, kanya pa talaga natin tilipin si David. Asan yung kabahay? Hindi sirali na natin yung sumurigor eh. Tara na, samahan natin sila. Tara na, samahan na tayo. You lied to me? Pinaglihiman mo ako? Alam mo, naglihim ako dahil ang akala ko maayos ang kalagayan ng Olivia sa mga gerero. Pero nagkamali ako. Kung alam ko lang na ganyan ang sitwasyon niya sa mga gerero, sana kinuha ko siya noon pa at pinalaki ko rin dalawa. Magkasabay kayong dalawa! Wala ka nang magagawa, Ramon. May karapatan ako at ang anak ko sa lahat ng kayamanan at kapangyarihan ng mga Montenegro. No! No! Hindi. Kamay namin ni Papa ang nagbuo ng negosyo at kapangyarihan ng pamilyang ito. At tanging ang anak ko lang ang tagapagmana nito. Wala nang iba. Hindi isang tagalabas. Hindi isang kirero na pumaparte lang sa yaman namin. That's not for you to decide. I am going to claim what's rightfully mine. No, never. Hindi kita matuturing at ang anak mong yan na isang pamilya. Bakit? May mga tinanggap din naman kayo na hindi nyo kadugo, ah. Tama na! Tama na! Ramon, Olivia, sana naman magkasundo na magkaintindihan kayong dalawa. Don't worry, Papa. I'm just here to claim my birthright. Total naman, magkakampi naman tayo eh. Laban sa mga gerero. You can trust me. Hinding-hindi ko tatraidorin ang pamilyang ito. You will never be part of this family. Bastard. Atoy! Atoy! Romeo! Si McGregor, bitbit niya yung bangkay ni David. Di ko alam kung saan dadalhin. Diyos ko po, ano nangyayari kay Rigor? Hindi niya nagkinalang ang bangkay ng anak niya.
Ate, anong nangyayari? Ayun ho, ang libing ni David sa Laloma. Sumama na po kayo. Naku, kailangan malaman kagad to ni Eteng at ni Tanggol. Mahal kong pamangkin. Lika na. May eleksyon pa tayong ipapanalo. Kung mayor ka na, at vice mayor na ako, it'll be the start of a new era. The Montenegro era. Hello, anak! Hello, anak Enteng! Si Rigor! Ililibing na si David! Sabihan mo agad si Tanggol! Dali niya! Ano, Nay? Ililibing agad? Saan daw? Sa Laloma! Dalihan ninyo! Sige, Nay. Tanggol, tumawag si nanay. Si David, ngayon na raw ililibing sa Laloma. Ramon, Hindi ako makapaniwala na ginawa sa akin pa ito. Matagal na panahon siya nagsinungaling sa akin. And for a long while, akala ko ako lang natatanging Montenegro. baka naman may sapat na dahilan si Don Julio kaya hindi niya sa'yo nasabi kagad. Wala sa sapat na dahilan. You know that woman thinks that she can just barge in here at makihati sa ipamamana ko kay Tanggol. Hindi mangyayari yun. Pero Ramon, alam ko na alam mo. May karapatan si Olivia bilang anak ni Don Julio. Ba't hindi mo nalang bigyan ng pagkakataon? She cannot be trusted. Nalaki siya ng mga girero. Ba't si Tanggol? Hindi rin naman siya lumaki kasama ng mga Montenegro pero tinanggap mo siya ng buong buo. Ramon, hindi mo na maikakaila. Kapatid mo si Olivia. Ba't hindi mo nalang subukan tanggapin? Alang-alang kay Don Julio. Never! Don Julio, saan pupunta si Tanggol? At sino yung David? Panilibing yata yung namatay niyang kapatid. Are you sure na hindi siya umalis dahil sa akin? No. Meron lang talaga sigurong asikasuhin siya. Don Julio? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa inyo. Sorry kung pinagtangkaan ko ang buhay ninyo dahil ang alam ko talaga isa akong gerero. Hindi ko alam na kayo pala ang tunay kong ama. Medyo masakit para sa akin ang ginawa ko, pero kasalanan ko ang lahat ngayon. Kung nung pala ang binawi na kita at pinalaki ko kayong dalawa ni Ramon na magkasama, hindi sana kayo nagkakagulo ng ganito. Don't worry. Ngayong alam ko na isa akong Montenegro, gagawin ko ang lahat para matanggap kami ni Ramon. No, Olivia. Hindi. Ako ang ama ninyong dalawa. Ako ang mag-aayos ng pamilyang ito. Inigo,
Ang lolo mo. Magmano ka sa lolo mo. Kaya pala magana ang loob niyo sa akin, Don Julio. Iho, magmula ngayon, lolo na ang itatawag mo sa akin. At ngayong panahon na kayo, Montenegro, may isa lang akong hihilingin sa inyo. Ano ho yun? Dito na kayo tumira sa mansyon ko. Talaga ho? Are you sure? If you insist. Papa. जिसका सानी कोई नहीं हो सकता। तो आज उनकी शहादत का दिन भी है और 21 रमज़ान मुबारक ये बहुत ही बाबरकत घड़ी है और इसमें दुआएं भी कबूल होती हैं जब उनका ज़िक्र करते हैं ऐसी हस्तियों का जो कायनात की आला तरीन और अजीम तरीन हस्तियाँ हैं। ये ऐसी हस्तियाँ नहीं हैं। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, कुल्लो कुफर के मुकाबले में कुल्लो ईमान जा रहा है। जंग के मौके पे तो कुल्ले ईमान की बात की है, कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। तो ये छोटी बात नहीं है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक बहुत ही प्यारी हस्ती हैं, बहुत ही रूहानी शख्सियत हैं कायनात में, एक मुनफरद मकाम के साथ। मैं समझता हूँ कि उनका जो रुतबा है वो बहुत ही आला है। और जब हम उन हस्तियों की पैरवी करते हैं जो तय्यबीन भी हैं, ताहिरीन भी हैं, मासूमीन भी हैं, तो फिर अल्लाह का करम होता है। इसी तरह आयत तत्हीर में भी देखें तो वहाँ पे भी एक मुनफरद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इज़्ज़त से नवाजा है। और आका अलैहिस्सलाम ने भी जो उनसे शफ़क़त फरमाई हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से, वो बहुत ही मैं समझता हूँ अजीम तर है। और एक दूसरे को जब सहाबाए किराम को एक दूसरे का भाई बनाया तो सारों को एक दूसरे का भाई बना चुके। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खड़े देख रहे हैं कि मुझे आका अलैहिस्सलाम ने किसी का भाई नहीं बनाया, सारे सहाबियों को एक दूसरे का भाई बना दिया। तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। तो ये रुतबा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मैं समझता हूँ कि ऐसी रूहानी शख्सियत हैं, ऐसी रूहानी हस्ती हैं कायनात की कि उनके नक्श कदम पे चल के आप डायरेक्ट जन्नत में जा रहे होते हैं जब उनकी पैरवी करते हैं इन हस्तियों की। और खुलफाए राशिदीन में देखा जाए तो चौथे नंबर पे खिलाफत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कुर्ब ने अता फरमाया, इसका सानी कोई नहीं हो सकता। तो ये सारे सलासिल रूहानियत के जितने भी सलासिल हैं वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से ही जाके मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी रूहानी जो काम किए हैं, इस तरह प्रैक्टिकल लोगों के सामने करके दिखाया है, लोगों के सामने रूहानियत को प्रैक्टिकल में ला के लोगों तक इस रूहानी इल्म को पहुंचाया है। क्योंकि जो भी रूहानी इल्म होते हैं, जो वही इलाही का इल्म होता है, उस दरवाज़े से जब तक आप नहीं गुज़रते आपको रूहानियत मैसर नहीं आती। हर तमाम सहाबा सितारों की मानंद है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, जिसकी पैरवी करोगे फलाह पाओगे। लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उनमें से एक ऐसी हस्ती हैं जो अपने मामलात के अंदर, रूहानी कैफियत के अंदर एक मुनफरद मकाम रखते हैं। जितने भी सलासिल देखें उनके अंदर अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के हवाले से जब हम उस परवरदिगार की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें भी देखा जाए तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक ऐसी रूहानी मिराज पे हैं कि उनके बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मामलात, बड़ी बड़ी कैफियत और बड़ी बहादरी, दिलेरी, जुर्रत और हिम्मत के साथ
इस्लाम को फ़रोग़ मिला। और यही कैफियत जंगों में देख लें, मुख्तलिफ़ मकामात सोशल सेटअप में देख लें, हर जगह के ऊपर आपके कारनामे दर्जा कमाल के रहे। और आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चल के अपने आप को कामयाब तरीन बनाया। और मैं समझता हूँ कि ये रूहानी कैफियत जितनी भी चल रही हैं, ये उन्हीं के तवस्सुत से आगे चलती हुई दिखाई देती हैं। तो आपकी शहादत देखा जाए तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने सुबह की नमाज के वक्त जब आपके ऊपर वार किया तो ये सारा चेहरा खून से लथपथ हो गया। मैं समझता हूँ कि ये शहादत बहुत बड़ा जुल्म था, बहुत बड़ा हमला था। तो ये हस्ती, कायनात की अजीम हस्ती, मैं समझता हूँ कि हर जगह शहादतें जो होती हैं, ये एक मुनफरद किस्म की शहादत थी जो मस्जिद के अंदर हुई। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, वो भी मस्जिद में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हस्तियाँ हैं, इनका नेमल बदल कोई नहीं हो सकता। ये कायनात की आला तरीन हस्तियाँ हैं और इन्हीं के तवस्सुत से इस्लाम फैला, इस्लाम की बका आज भी देखा जाए तो आज भी इन हस्तियों का तज़किरा जारी व सारी है। पूरी दुनिया के अंदर हर मसलक के लोग जो सभी को मानते हैं, सहाबा कराम को भी, अहले बैत उज़्ज़ाम को भी, अहले बैत उज़्ज़ाम में भी हैं और सहाबा कराम में भी। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम एक ऐसी हस्ती हैं जो अहले बैत उज़्ज़ाम में से भी हैं और सहाबा कराम में से भी। इन्हें दो किस्म के शर्फ हासिल है। और वैसे देखा जाए तो रूहानियत में इनका मकाम हर सिलसिले के अंदर, सिलसिला रूहानियत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ये रूहानियत में नक्शबंदिया सिलसिला जो है, उनके साथ उनका गहरा एक वास्ता है। तो वहाँ से भी गाइडलाइन मिलती है। लेकिन तमाम खुलफाए राशिदीन ये आपस में एक हैं और एक तरीके से इन्होंने रूहानियत पे काम किया और इसी तरह सिस्टम को भी चलाया, इस्लामिक वैल्यूज़ को आगे बेहतर अंदाज में चलाया। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की सोबत इख्तियार की, बचपन से लेके उन्हीं के हाथों में पले, उन्हीं के हाथों से सारा कुछ उन्हें मिला। मैं समझता हूँ कि ये रूहानी कैफियत जितना इंसान जिसके कुर्ब व जवाहिर में रहता है, उतनी तेज़ी के साथ वो रूहानियत ट्रांसफ़र होती है। एज़ ए स्पिरिचुअलिज़म का स्टूडेंट होते हुए मैं ये कहूँगा कि रूहानी फैज़ उनके तवस्सुत से आगे चलता है। और इसी तरह ऐसे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। अली हक हक को अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। ये हस्तियाँ मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अजीम तर हैं। जब हम इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे अंदर नूरानियत भी आएगी, रूहानियत भी आएगी और बहुत सी कैफियत हमें मिलेंगी और रूहानी सरूर भी मिलेगा, रूहानी सुकून भी मिलेगा और रूहानी फैज़ भी मिलेगा। क्योंकि ये हस्तियाँ हक पे डट जाने वाली हस्तियाँ। ऐसे थोड़ी फरमा दिया अली हक हक को अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। तो ये एक बड़ी अहम बात है। तो आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी तरीक़ेकार के मुताबिक उनके ताबे गुजारी और आपके लुआब दहन से फैज़याब हुए। और ये शुरू से लेके आखिर तक अपनी ज़िंदगी जो है उसको इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक पूरे तरीके से उसको अपने ऊपर लागू किया और दूसरे लोगों को भी इस रूहानी फैज़ से भी आगाही दी और इस्लामिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हस्तियों का साया हमेशा कायम दायम रखे और ये रूहानी क़ुव्वतें सभी को मिलती रहें जो इस को सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की मुश्किलों को आसानियों में बदले और कुरानी फैज़ और ईमानी क़ुव्वतों को परवरदिगार मज़बूत बनाए और हर तरह की बेहतरी फरमाए, सच्चे वसीलों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए
और राह हक और रुश्द व हिदायत की तरफ हर एक को गामजन फरमाए। इस्लाम का बोलबाला हो, पाकिस्तान में अमन व सलामती हो और हर किस्म के दुख तकलीफ़ें सभी की दूर हों। आज का दिन बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ऐसी हस्ती का दिन है जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि आयत तत्हीर को देखा जाए तो वो भी इन्हीं की शान में है। इन सारी हस्तियों की पंजतन पाक जिसमें आते हैं, तो ये हस्ती कायनात में, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुनफरद मकाम से नवाजा है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम एक ख़ास किस्म की शख्सियत हैं जिनकी शान जितनी बयान की जाए कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम सहाबी सहाबियात अहले बैत उज़्ज़ाम और जितने भी अल्लाह के नेक वली आए सभी के रास्ते उन्हीं के साथ ही जाके जुड़ते हैं तो रूहानी फैज़ मिलता है। जितनी हस्तियाँ हैं ये सारी की सारी हस्तियाँ काबिल एहतराम हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में चल रहे होते हैं। वातियुल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में चल रहे होते हैं अल्लाह उन पर रहम फरमाते हैं। और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी दीन के प्रचार के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। बल्कि आल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उन्होंने सारे का सारा अपना निज़ाम ऐसे इस्लाम के ताबे करके अपनी जान की कुर्बानियाँ दे के इस्लाम का बोलबाला फरमाया। और हमें चाहिए कि हम इस्लामिक वैल्यूज़ के ऊपर अपने आप को कारबंद रखें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में ही हमारी कामयाबी है और हमारी फलाह है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।